Hello everybody. Standard 12, subject economics. Chapter number 5, poverty, session number 5. Topics of the session: causes of poverty. There are so many. That includes historical reasons, causes of rural poverty, economic factors, social reasons, and other reasons. As you know, till now in the previous session we have discussed about different indicators of poverty. Now today in this particular session we will discuss about different causes of poverty in India. Okay, so the question can be asked for a 5 marks in exam. Let's see them in detail. Causes of poverty can be also asked as a reason of poverty. So both the answers are one and same. The causes are categorized into different category. In that, first, historical reasons, that includes poverty in agriculture and poverty in cottage and small industries. Second one, reason for rural poverty, that includes natural causes, demographic factors, economic factors, that includes low agricultural productivity per labor, unequal distribution of land and property, minimal development of small and cottage industries, rapid increase in prices, and high rate of unemployment. Fourth category is social reason, that includes low level of education, gender inequality. And the last category is other reason, that includes war, increase in defense expenditure, and defective policies. So let's begin first with the historical reason. Historical says that in the 17th century, India was comparatively more urbanized and most commercialized nations before the arrival of the Britishers, right? The culture developed by the Mohenjo-daro, Indus Valley civilization, Harappan civilization made us India very prosperous in the field of trade, commerce, agriculture, and because of that we can say that before 17th century we were more urbanized and more commercialized. In business, India had major share in export of cotton textile. With that, silk, spices, paddy was also exported. As India was very prosperous in the field of agricultural activity, at the same time there were good amount of cottage industries were also there in India, and because of that fine quality of silk or a muslin fabric, variety of spices and paddy were the important products which we were exporting to the different part of the world. But after the entry of the English, Frenchmen and the Dutchmen, their policy of colonial exploitation, India's agriculture and industrial situation deteriorated. but जैसे ही इंडिया में फॉरेन कंट्रीज स्पेशली द यूरोपियंस जब इंडिया में आए, एंड एज वी नो एंड लर्न इन द लोअर क्लासेस, है ना, कि ट्रेड के नाम पर वो इंडिया में आए एंड धीरे धीरे उन्होंने अपने इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को भी कैप्चर किया, हमारे टेरिटरीज को डोमिनेट करने लगे एंड मोर देन 200 years दे रूल्ड ओवर इंडिया. और यही समय के दौरान इंडिया का जो भी एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी था, कॉटेज इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का जो प्रॉस्पेरिटी था, वो धीरे धीरे पूरा डिस्ट्रॉय हो गया. Arrival of poverty in Indian agriculture because of the Britishers. Due to the British rule, agricultural sector suffered in India due to the many reasons. On one hand, Indian agricultural was based on monsoon. Britishers did not show any interest in investing money in irrigation project. कि as even today also, है ना, India is mostly considered as an agrarian nation.
Second thing, majority of the agricultural land for the purpose of water or irrigation depends on monsoon. कि ज़्यादातर आज भी हमारे यहाँ पे जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती है उसमें वाटर सप्लाई के लिए ज़्यादातर मानसून पर ही डिपेंडेंट है हम. एंड सेम थिंग ड्यूरिंग द ब्रिटिशर्स द क्वेश्चन वाज ऑल्सो सेम, बट ब्रिटिशर्स का पर्पस था इंडिया से इनकम कमाना, इसलिए उन्होंने कभी भी एग्रीकल्चरल के डेवलपमेंट के लिए इरिगेशन या दूसरी एग्रीकल्चरल फैसिलिटी पे कभी कोई इन्वेस्टमेंट किया नहीं. On the other hand, due to the repeated drought, zamindari system, tenancy system, the farmers' economic condition spoiled and they were under the pressure of debt and interest of loan given to them by zamindars, moneylenders and big businessmen. As in the first point they mentioned, the agricultural sector suffered in India due to many reasons under the British rule. One main point I would like to tell you is that as soon as the Britisher got the control in their hand, उन्होंने लैंड रिवेन्यू कलेक्शन के लिए वैरायटी ऑफ लैंड रिवेन्यू सिस्टम लॉन्च किए. उन्हें यह पता था कि जब वो यहाँ पर डोमिनेट करना उन्होंने शुरू किया तब इंडिया में से मेन सोर्स ऑफ इनकम था एग्रीकल्चरल इनकम और यू कैन से द लैंड रिवेन्यू. ठीक है, लगान शॉर्ट वर्ड में. उस इनकम को बढ़ाने के लिए उन्होंने वैरायटी ऑफ न्यू लैंड रिवेन्यू सिस्टम लॉन्च किए. परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, माहलवारी सिस्टम, रियायतवारी सिस्टम, ये डिफरेंट लैंड रिवेन्यू सिस्टम थे. दूसरा, उन्होंने लैंड रिवेन्यू कलेक्शन का जो सिस्टम था जो इंडिया में ब्रिटिशर्स के पहले था उसको टोटली चेंज कर दिया. दैट मीन्स बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिशर्स लैंड रिवेन्यू फार्मर कैश और काइंड उसमें पे कर सकते थे. अगर कोई पर्टिकुलर ईयर में मॉनसून फेलियर है तो एम्परर या रूलर्स उस पर्टिकुलर ईयर में एग्जेम्पशंस देते थे, या तो वो टैक्स वो फार्मर फ्यूचर में भी पे कर सकता था. ऐसे अरेंजमेंट्स थे. बट एज द ब्रिटिशर गॉट द कंट्रोल, उन्होंने वो टैक्स सिस्टम को कंपलसरी कैश कर दिया, उसका फिक्स टाइमिंग कर दिया. लेट पे करने पर पेनल्टीज और फाइन लगने लगे. ये सभी की वजह से टू पे द टैक्सेस ऑन टाइम फार्मर, जमींदार, जो दूसरे साहूकार या मनी लैंडर्स थे या बड़े बिजनेसमैन थे उनसे लोन लिया करता था. और जब वो टाइम पर नहीं दे पाता था धीरे धीरे वो लोन का इंटरेस्ट का इंटरेस्ट ऐसे वो स्लोली एंड ग्रेजुअली डेब्ट के क्लच में दबने लगा. एंड दैट क्रिएटेड द प्रॉब्लम ऑफ सीवियर पॉवर्टी स्पेशली अमंग द एग्रीकल्चरल फार्मर्स. कल्टीवेटर स्टार्टेड लूजिंग देयर लैंड, और जब वो अपना लोन या उसका इंटरेस्ट पे नहीं कर पाते थे, फार्मर की लैंड जो होती थी वो जमींदार या तो मनी लैंडर्स जिनको भी उनसे पैसा लेना है वो उनसे छीन लेते थे. और ऐसे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करने वाला फार्मर आगे जाके लैंडलेस लेबर या तो पीजेंट्स बन गया. Entry of poverty in Indian industries. As I told you, before the arrival of the Britishers, India was very prosperous in the field of cottage industries, household industry and small scale industries. In the case of business and trade, Britishers followed that kind of trade policy, tax policy and industrial policy which would benefit only them by trading in India. जैसे ही ब्रिटिशर्स ने इंडिया में अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश किया, उन्होंने अपनी ट्रेड पॉलिसी को मींस इंडिया से जो भी गुड्स एक्सपोर्ट वगैरह होते थे या ट्रेड होता था उसकी पॉलिसी को ऐसे मोल्ड किया कि पूरा ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट अदर कंट्री में ना जाते हुए इंग्लैंड की ओर ज़्यादा से ज़्यादा जाए. इसलिए उन्होंने ट्रेड पॉलिसी में रिस्ट्रिक्शंस लाए. इंडिया से जो गुड्स दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट होता था उस पर ज़्यादा टैक्स, अगर वही गुड्स आप इंग्लैंड भेजो तो कम टैक्स. ऐसे सिस्टम्स चालू किए. इंडस्ट्रियल पॉलिसी को उन्होंने स्लोली ग्रेजुअली इस तरह से मोल्ड किया कि इंग्लैंड से डेवलप और बनकर आने वाले गुड्स इजीली इंडियन मार्केट में एंटर होने लगे. उस वजह से डोमेस्टिक गुड्स बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज थी वो धीरे धीरे बंद होने लगी. इंडियन एक्सपोर्ट्स वर प्रोहिबिटेड इन यूरोप वेयर एज गुड्स प्रोड्यूस इन इंग्लैंड वर गिवन अ लॉट ऑफ टैक्स कंसेशन एंड फ्रीडम टू सेल इन द इंडियन मार्केट्स. सेकेंड थिंग, हमारे गुड्स के कंपैरिजन में इंग्लैंड से जो गुड्स इंडिया में आते थे उन पे बहुत कम टैक्स लगता था.
and because of that the goods used to be reached to Indian market at a very cheaply rate, and at the same time the goods which were going outside India were charged with the heavy taxes and they became very costly in the international market. और जब वो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत एक्सपेंसिव हो गए तो फॉरेन कंट्रीज ने उन्हें परचेस करना बंद कर दिया, और इस वजह से हमारे लोगों को भी इंडियन मार्केट में अपने गुड्स को लो रेट पर बेचना जरूरी बन गया. Moreover, to supply these goods to each and every corner of India, Indian Railways was extensively used. As we know that in 1853 है ना, Britishers started train. उन्होंने यहाँ पे ट्रेन स्टार्ट किया, बट नॉट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी. वो अपने गुड्स जो यूरोप से आते थे या इंडिया से जिन गुड्स को यूरोप भेजना है, वो सभी गुड्स एंड सर्विसेज आसानी से पूरे इंडिया के ईच एंड एवरी कॉर्नर में जल्दी पहुंच पाए. ये मेन रीजन था इंडियन रेलवे को स्टार्ट करने के पीछे. Because of the kind of policy, Britishers gained surplus from the production and the sale in India, which they invested in Britain to speed up the industrialization, and used Indian market to sell final goods produced in Britain. As they were exploring a huge amount of money by charging the variety of taxes on the land revenue, at the same time on trade, business and industry, जो भी पैसा वो यहाँ से कमा रहे थे वो पूरा पैसा they were investing in England. Why? In order to develop the industrial sector in their England and especially in the European countries. और वहाँ पे जो वो इंडस्ट्रीज डेवलप कर रहे थे उसके लिए लो रेट पे यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे और उनकी इंडस्ट्री में बनने वाले फिनिश गुड्स को इंडियन मार्केट में चीप रेट पर बेचते थे. इन दीज वे टोटल बेनिफिट विच मस्ट स्टे इन इंडिया, पूरा पैसा या प्रॉफिट जो इंडिया में रहना चाहिए था वो पूरा का पूरा इंग्लैंड की ओर डाइवर्ट होने लगा, और इसी तरह से अपना एग्रीकल्चर सफर होने लगा. एट द सेम टाइम स्लोली ग्रेजुअली कॉटेज इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी पूरी डिस्ट्रॉय हो गई. इन दिस वे Indian trade and business started losing their competitive power and the productions too. इस तरह से फॉरेन से बनकर आने वाले गुड्स, या ऐसे भी कह सकते हो कि इंग्लैंड से बनकर आने वाले गुड्स इंडस्ट्री में बनते थे, मशीन से बनते थे, उस वजह से वो ज़्यादा क्वांटिटी में और चीप रेट पर इंडियन मार्केट में एंटर होने लगे. एंड इन कंपेरिजन ऑफ दैट, हैंडमेड और अ कॉटेज इंडस्ट्री मेड गुड्स ऑफ इंडिया बिकेम लिटिल बिट कॉस्टली, और उस वजह से उनके डिमांड्स और सेल कम होने लगे और इंडियन बिजनेसमैन और उनका बिजनेस सफर होने लगा. स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री ऑफ इंडिया वर रूइंड. एज अ रिजल्ट, द अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी स्टार्टेड इंक्रीजिंग इन द लेबर सेक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉटेज इंडस्ट्री. नाउ द सेकेंड कॉज, दैट इज अ कॉजेस ऑफ रूरल पॉवर्टी, in that first natural factors. As we know that the Indian has been an agricultural country from the beginning, and today also a major portion of population, those who are living in villages, they are dependent on agriculture. Since the years है ना, we are considered as a agrarian nation. आज भी इंडिया में more than 60% population according to 2012 census जो विलेज या तो रूरल एरिया में रहते हैं, देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम इज एग्रीकल्चरल एक्टिविटी. इन इंडिया, द प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर सेक्टर इज बेस्ड ऑन नेचुरल फैक्टर्स लाइक रेन एंड वेदर कंडीशन. एज वी डिस्कस जस्ट नाउ दैट इन इंडिया एग्रीकल्चर इज लाइक अ गैम्बल. व्हाई? बिकॉज मेजर पोर्शन ऑफ द एग्रीकल्चरेबल लैंड डिपेंड्स ऑन मॉनसून फॉर द वाटर सप्लाई. ज़्यादातर जगहों पे जो खेती होती है वहाँ पे जो वाटर सप्लाई है वो रेन के थ्रू होता है. दैट मीन्स मॉनसून बेस्ड एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है हमारा. सो इफ इट विल रेन, द फार्मर विल हैव अ गेन. अगर बारिश हुई तो, और वो भी प्रॉपर बारिश हुई तो फार्मर कुछ कमाएगा. अगर बिल्कुल नहीं हुई या बहुत ज़्यादा हो गई, इन बोथ द केसेस द फार्मर विल सफर. रिपीटेड ड्रॉट, uncertainty of monsoon and flood
results in low production and less and uncertain income of agriculturists. Hence, the poverty is more. As I told you, there are two cases. If there is a है ना acute shortage of rain, अगर बारिश ना के बराबर हुई है ना, या तो जितनी ज़रूरत है उससे कम हुई, the situation will result into drought. At the same time, it will result into failure of the income for farmer. अगर ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हुई, then too it will lead to the destruction of the agricultural crops and the farmer will suffer. Second, demographic factor. After independence and during the planning period in India, due to the economic development and rapid improvement in the health services, on the one hand, death rate declined faster, but at the same time, birth rate did not reduce. Especially after the independence, implementation of the first 5-year planning, second 5-year planning helped India to achieve a little bit faster economic development. Over the period of time, गवर्नमेंट ने हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर के पीछे खर्चा करना शुरू किया, उस वजह से डेथ रेट कम हो गई, बट बर्थ रेट कम हुआ नहीं, उल्टा वो ज़्यादा बढ़ने लगा, एंड दैट रिजल्टेड इनटू अ हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट. और उस वजह से इंडिया में स्लोली ग्रेजुअली पॉपुलेशन ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने लगा. हाई इंक्रीज इन पॉपुलेशन डिड नॉट अलाउ पर कैपिटा इनकम टू इंक्रीज. यस, एट वन साइड वी वर अचीविंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा था, बट दैट वाज वेरी स्लो कंपेयर टू द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, एंड दैट रिजल्टेड इनटू लो पर कैपिटा इनकम. Low PCI and big size of family resulted in the poor quality of life. If you having a more member in the family and you are not able to earn enough money, that means you have to sacrifice the basic facilities of a food, clothing, shelter, health, education, sanitization, ड्रिंकिंग फैसिलिटी. आप अगर कम पैसा कमा रहे हो तो डेफिनेटली आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होगा वो अफेक्ट होगा, एंड यू विल बी फोर्स्ड टू लिव इन अ पॉवर्टी. And that happened with all the Indians, as the PCI was lower and growth rate of population was high. There was a rapid increase in labor supply because of high population, but the low pace of development of employment opportunity resulted in the reduction of wage rate. At the one side, the population growth was very faster, and because of that every year है ना, एजुकेटेड पॉपुलेशन और अनएजुकेटेड पॉपुलेशन का इतना बड़ा एक ग्रुप रेडी होता था मार्केट में जो जॉब की रिक्वायरमेंट रखता था. बट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया वाज वेरी स्लो, एंड बिकॉज ऑफ दैट काम जितना नहीं है उससे ज़्यादा लोग मार्केट में अवेलेबल है, और उसी वजह से लो सैलरी ऑफर की जाती थी और लोगों को पॉवर्टी में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता था. नाउ द थर्ड category, that is the economic factors, that includes the low agricultural productivity per labor. One of the important reason for high poverty in rural India is low agricultural productivity per labor. See, the land size with the farmer in India is very small. At the same time, there is a high dependency of the people on agricultural sector that keeps the per labor productivity of agricultural outputs on a lower side. कि लोग ज़्यादा है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए जो फार्म है उसका साइज कम है, और घर में लोगों के नंबर्स भी ज़्यादा है, इस वजह से पर लेबर जो प्रोडक्टिविटी आती है वो बहुत ही कम है. बिकॉज ऑफ द पुअर इरीगेशन फैसिलिटी, insufficient technology, lack of education and training, low rate of investment, heavy load of population results in low agricultural productivity per labor. As even in spite of है ना more than 70 years of independence, आज भी पूरे इंडिया में प्रॉपर इरीगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है. एट द सेम टाइम, बिकॉज ऑफ द पुअर नेचर of the financial condition of the farmer is poor, he is not adopting the modern technology, he is untrained, उसका education कम है. because of these all reason
है ना, द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर रिमेन्स ऑन द लोअर साइड इन इंडिया। और अगर प्रोडक्टिविटी कम है तो डेफिनेटली द इनकम ऑफ द फार्मर्स रिमेन लो, और ना चाहते हुए भी ही इज फोर्स्ड टू लिव इन द सिचुएशन ऑफ पॉवर्टी। Unequal distribution of land and property. Land is very important for cultivation. True. During the British period in India, because of the system like zamindari, land ownership was with the handful of the zamindar. जैसे हमने अभी आगे डिस्कस किया था कि पुअर फार्मर अपना टैक्स चुकाने के लिए जमींदार या मनी लैंडर्स से पैसे लेते थे, और जब वो टाइम पर नहीं चुका पाते थे, दे यूज्ड टू लूज देयर लैंड, है ना, टू जमींदार एंड दी साहूकार्स। और उसी वजह से ब्रिटिश पीरियड के टाइम से ही इंडिया में जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था वो पूरा अनबैलेंस हो चुका है। कुछ लोगों के पास ज़रूरत से ज़्यादा लैंड है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बिल्कुल लैंड नहीं है या तो लिमिटेड साइज ऑफ लैंड अवेलेबल है। दिस क्लास वॉज नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द लैंड कल्टिवेशन एंड हैड नो इंटरेस्ट टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। Those who were holding, है ना, और होल्डिंग अ लार्जर सेक्टर ऑफ द लैंड, जिनके पास ज़्यादा लैंड थी, लाइक ये ज़मींदार या मनी लैंडर जो हुआ करते थे, उनके पास ज़मीन तो बहुत थी, बट एज दे वर नॉट द एक्चुअल कल्टिवेटर ऑफ द लैंड, दे नेवर शो एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट टू डेवलप द एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, एंड बिकॉज ऑफ दैट द इनकम इन द सेक्टर रिमेन्ड ऑन अ लोअर साइड. On the other hand, the tenants were working on the other land and were not the owners, so they also had no interest in investment. एक जगह पे ज़मींदार और मनी लेंडर का ऐसा ग्रुप है जिनके पास लैंड तो बहुत है, पर वो खुद एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं करते, इस वजह से वो अपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वेस्टमेंट भी नहीं करते थे. सेकेंड साइड, ज़मींदार और साहूकार की लैंड पे काम करने वाला टेनेंट, है ना, आज की सिंपल लैंग्वेज में हम उसे गुजरात में भागिया या दाड़िया कहते हैं, लैंडलेस लेबर और पीजेंट्स, है ना, जो किसी की लैंड पर काम करते हैं, आइदर ऑन अ वेजेस बेसिस और एट द एंड प्रोडक्शन में उनको कुछ हिस्सा दिया जाता है, बट दे आर नॉट द ओनर, कि वो खुद ओनर नहीं है, इस वजह से वो भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में उतना इन्वेस्टमेंट या उसको डेवलप करने में उतना इंटरेस्ट दिखाते नहीं है. एंड ड्यू टू ऑल दीज रीजन द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन and productivity remains low and the poverty keep on increasing day by day. Minimal or a low development of small and cottage industry. In India, the second 5-year plan onward as a strategy for economic development, heavy and basic industries were given more importance. हमारा जो स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज था, जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे पूरा डिस्ट्रॉय हो गया या तो रूइंड हो गया, उसके प्रॉपर डेवलपमेंट पर आज़ादी के बाद से कभी पूरा ध्यान नहीं दिया गया है. इंडस्ट्रीज, स्पेशली स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री, इज हैविंग अ हाई पोटेंशियल टू प्रोवाइड मोर नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज. क्यों? क्योंकि स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज में ज़्यादातर करके लेबर वर्क किया जाता है, ना कि मशीनरी वर्क. बट सेकेंड 5-year प्लान जो आज़ादी के बाद इम्प्लीमेंट हुआ, उसमें इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट पर ध्यान तो दिया, बट कौन सी इंडस्ट्रीज? बिग इंडस्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्रीज एंड बेसिक इंडस्ट्री लाइक कोल, आयरन, है ना, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, उनके डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया गया. इन द रूरल एरियाज, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री विच हैव ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन इन एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन एंड इनकम वर निग्लेक्टेड. एज आई टोल्ड यू कि जो सेक्टर ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर पाता है, एंड स्पेशल इन द रूरल एरिया, वो है स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री, पर उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए किसी ने ध्यान नहीं दिया. दे वर टोटली इग्नोर्ड. मोरओवर द एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज लाइक एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी फार्मिंग, फिशरीज वर ऑल्सो ग्रोइंग slowly, and this increased the seasonal unemployment, and as a result poverty remained high. आपको भी पता है कि इंडिया में एग्रीकल्चरल एक्टिविटी सीजनल है, तो सीजनल एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के बाद रूरल एरियाज में ना तो स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो पाया,
ना कि एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी फार्मिंग, फिशिंग एक्टिविटी जो प्राइमरी सेक्टर से ही जुड़े हुए फील्ड है, उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट पे भी इंडिया में आज भी प्रॉपर अटेंशन या इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया है। एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली द रूरल सेक्टर हैज़ नेवर डेवलप्ड येट इन स्पाइट ऑफ सेवरल ईयर्स। और उसी वजह से पॉवर्टी डे बाय डे बढ़ती जा रही है और लोग सफ़र करते जा रहे हैं। Now rapid increase in the prices, point number 4. Price rise seriously affects the poverty and especially people those who are living in poverty. जब भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या गुड्स और सर्विसेज के मार्केट में प्राइस बढ़ते हैं तो उसका सबसे ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट आता है लोअर इनकम या मिडिल क्लास, पुअर क्लास या डेली अर्नर्स होते हैं उन पर आता है। बिकॉज ऑफ द वॉर, drought, low national production, rapid increase in demands of goods and services, increase in the production cost, price of goods and services as well as edible goods rises rapidly. जैसे मैंने बोला, या वॉर सिचुएशन है या ड्रॉट सिचुएशन है, तब प्रॉपर गुड्स की सप्लाई नहीं हो पाती, नेशनल प्रोडक्शन टोटली लो है, या तो गुड्स की मार्केट में ज़रूरत से ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है, या तो बेसिक जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गुड्स का उसमें कुछ ज़्यादा इंक्रीमेंट होने की वजह से मार्केट में जब भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस बढ़ती है एंड स्पेशली एडिबल गुड्स की प्राइसेस बढ़ती है, दैट क्रिएट्स द सिचुएशन ऑफ पॉवर्टी वर्स्ट। दिस रिड्यूसेस द परचेजिंग पावर स्पेशली ऑफ अ लोअर इनकम ग्रुप, क्योंकि पहले से उनकी इनकम कम होती है और जब प्राइसेस बढ़ने लगते हैं तो उनको अपने गुड्स को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। It reduces the standard of living and ultimately increases the poverty. On the other hand, increasing prices benefits the businessmen, traders and the big farmers, and this increases the unequal distribution of income in the society. Due to price rise, on the one side, we see the population who lives in a poverty, they start facing the problem of purchasing power, their standard of living goes down, and they suffers more problem of poverty. On the other hand, there is a class of businessmen, traders, the merchants, the big farmers who takes the advantage of such situation and earns more money. And this way, already imbalance and a distribution of income and property gets more worst. High rate of unemployment. In India, major part of the rural India is dependent on agriculture. But the agriculture will depend on monsoon and hence only one crop in a year is cultivated, so there exists seasonal unemployment. As I told you that the agricultural activity in India is majorly dependent on monsoon, and if there is a proper monsoon, the farmer will able to take only one crop in a particular season. That means during the monsoon and little bit before and after monsoon, farmer have a work. That means साल के 12 महीनों में से हार्डली उनके पास 7 या 8 महीने तक काम है, बाकी they are not having enough job opportunities. High increase in population, joint family system also increases the burden of agriculture and results in disguised unemployment. As I told you, in the India, the size of the farm is small, the dependency of the people on the agricultural activity is more, और उसी वजह से especially in agricultural sector you will find disguised unemployment. That means employment of more labor than the requirement. ज़रूरत से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, पर उनके वहाँ होने या ना होने से प्रोडक्शन पर कोई असर नहीं हो पाता, and ultimately the per labor productivity remains on a very lower side. At the same time, as we discussed, in India, especially in a rural area, lack of development of allied industry जैसे कि small industries, cottage industries, animal husbandry, fishing, poultry farming, ये सब कुछ नहीं हुआ. At the same time, high literacy, low mobility of the labor and high rate of unemployment resulted into poverty.
कि ना प्रॉपर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, इंडस्ट्रीज और कॉटेज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं दिया गया है। अलाइड इंडस्ट्री लाइक फिशिंग है ना, पोल्ट्री फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, उनके प्रॉपर ग्रोथ नहीं है। लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, ये सब की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्पेशली पॉवर्टी का रेशियो बढ़ रहा है। नाउ द सोशल रीजन इन फर्स्ट, लो लेवल ऑफ एजुकेशन। एज वी सॉ है ना, one of the major reason for poverty in India is the scarcity of education, training and skill. आज भी इंडिया में हार्डली 74 to 75% पीपल ही लिटरेट कैटेगरीज में आते हैं। दैट मीन्स 1/4 पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज येट इलिटरेट एंड दैट मेक्स द सिचुएशन ऑफ पॉवर्टी वर्स्ट। Low level of education, especially in rural areas, prevent them from gaining from use of new technology in agriculture, new agricultural system, research and benefit of the market for sale of the product. As the ratio of educated people in rural area and especially in agriculture and allied activity is low, due to illiteracy, the farmer never turns his opinion towards the use of modern technology, मॉडर्न एग्रीकल्चरल सिस्टम, और ना ही सोसाइटी में एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो नए रिसर्च डेवलपमेंट हो रहे हैं उस बेनिफिट का वो एडवांटेज ले पाता है। एंड अल्टीमेटली ही सफर्स एंड रिमेन्स ऑन अ बैकवर्ड साइड विथ ओल्ड मेथड ऑफ टेक्नोलॉजी ओनली। एज अ रिजल्ट, per hectare productivity and per labor productivity in agricultural sector remains low, and ultimately the income of the farmer also remains on a lower side. क्योंकि मॉडर्न साइंस का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, ओल्ड ट्रेडिशन पर भी डेवलपमेंट और डिपेंडेंसी ज़्यादा है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन द फार्मर गेन्स वेरी लिटल एट द एंड ऑफ द एग्रीकल्चरल सीजन एंड द इनकम ऑल्सो रिमेन्स लोअर। अपार्ट फ्रॉम दैट, because of low level of education, they get less opportunities in alternative employments. Education is very liberal in rural areas, especially among the girls, है ना, the education is like more or less like a zero, as they are not having enough education. So during the seasonal time when they are not having any work in agricultural field, they never go for other job opportunities, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है, प्रॉपर बेसिक एजुकेशन अवेलेबल नहीं है, इसलिए उनको पास एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कराने के अलावा और कोई ऑप्शन बचता नहीं है, एंड बाय फोर्स दे हैव टू रिमेन इन अ पॉवर्टी। wages remains low and the poverty keep on rising. Now the gender inequality. India has a gender inequality from the beginning, as the society of India is considered as a patriarchal society, that means male dominating society, जहाँ पे सोसाइटी में मेल ही ज़्यादा डोमिनेट करते हैं इन एवरी फील्ड, एवरी सेक्टर, एंड बिकॉज ऑफ दैट सोसाइटी केयर लेस अबाउट द हेल्थ ऑफ द फीमेल्स, और इस वजह से फीमेल सेक्शन जो है उनकी हेल्थ, उनके प्रॉपर ग्रोथ, उनकी लाइफस्टाइल, उनकी लाइफ में डेवलपमेंट के बारे में कोई सोचता नहीं है। सी दिस इज नॉट हैपनिंग इन एवरी फैमिली, बट येट द मेजॉरिटी यू विल फाइंड सच सिनारियोज। एज अ रिजल्ट द वुमन फेस हाई लेवल ऑफ माल नरिशमेंट, लो वेट एंड वीकनेस इन देयर बॉडी। ना उनको ढंग का खाना मिलता है, उनका प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाता, एंड देयर बॉडी remains weak, and because of that their working capacity also remains low. This caused the high maternal mortality during the childbirth, as the women's health, their malnourishment issues are not given proper attention. ज़्यादातर विमेन जब बच्चों को जन्म देती है तब डिलीवरी के टाइम पे उनकी डेथ हो जाती है, एंड दैट क्रिएट्स द प्रॉब्लम फॉर द न्यू बॉर्न चिल्ड्रन ऑल्सो, क्योंकि अगर मदर ही हेल्दी और स्ट्रांग नहीं है, द चाइल्ड है ना टू होम शी विल गिव अ बर्थ will also remain weak and having a health issues. Work allocation is such that it is believed as a compulsory for women at home. Normally, it is a tendency and a stereotype, a poor thought
in an Indian society that women are meant specially to do the household work, कि उनके लिए पहला प्रायोरिटी हमेशा घर का काम ही होना चाहिए, रिजल्टिंग इन टू लो लेवल ऑफ एजुकेशन एंड लेस इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी टू वर्क। और उसी वजह से बहुत सी कम्युनिटी और बहुत से स्टेट में आज भी गर्ल्स के एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं दी जाती, यही सोचकर कि आगे जाके घर का ही काम करना है ना, फिर पढ़ाई का क्या मतलब बनता है। दैट इज़ अ वर्स्ट थिंकिंग। और उसी वजह से फ्यूचर में उनके पास कोई भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी काम के लिए बचती नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर एजुकेशन ही नहीं मिला होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, एट अ वर्क प्लेस ऑल्सो फीमेल्स आर पेड लेस देन मेल्स बिकॉज ऑफ द नॉर्मल थॉट, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि विमेन को ज़्यादा क्या काम की ज़रूरत है। इस वजह से जब भी उनको काम की अपॉर्चुनिटी मिलती है, दे रेडी टू एक्सेप्ट है ना लोअर सैलरी, इवन दे नो दैट द मेल आर पेड फॉर द सेम वर्क ऑन अ हायर साइड, कि उन्हें पता भी होता है कि मेल सेक्शन को हम जो काम कर रहे हैं वही काम करने के लिए ज़्यादा सैलरी दी जाती है, फिर भी वो लो सैलरी पे करते हैं। क्यों? क्योंकि बड़ी मुश्किल से उनको अपॉर्चुनिटी मिली होती है। आई विल गिव यू द सिंपल एग्जांपल, है ना, एज अ क्रिकेटर विराट कोहली इज गेटिंग अ मोर देन 5 करोड़ रुपीज पर ईयर फ्रॉम द BCCI। एट द सेम टाइम द प्लेयर ऑफ द वुमेन क्रिकेट टीम आर गेटिंग अ लेस देन 2 करोड़ इन अ ईयर। सो सच थिंग हैपन्स इन एवरी सेक्टर। आप किसी भी सेक्टर में चले जाओ, ये डिफरेंसेस आपको देखने मिलेंगे। एज द पॉपुलेशन लेस देन हाफ आर वुमन, है ना, देन टू low health level, less opportunity for the work in the economic field, keeps the family income low and increases the level of poverty। कि विमेन को आज भी फैमिली में, सोसाइटी में इक्वल स्टेटस नहीं है। उनके इकोनॉमिक फैक्टर्स को हमेशा निगलेक्ट किया गया है कि वो काम करके फैमिली के इनकम में, फैमिली के डेवलपमेंट में इक्वल कंट्रीब्यूशन दे पाए। ये सोच इंडिया में आज भी सोसाइटी में प्रॉपरली डेवलप नहीं हुई है, एंड दैट कीप्स द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी वर्स्ट। नाउ देर आर सम अदर रीजन्स ऑल्सो विच रिजल्ट्स इन टू पॉवर्टी, एंड फर्स्ट, वॉर। आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया fought 2 wars with our neighboring country Pakistan and China, and that created more burden, है ना, financial burden over Indian economy. During the war, the limited resources of the country are spent on production and import of required arms and ammunition. When there is a war going on, है ना, in the country with the other nations, majority of the financial resources with the government are spent to purchase arms, ammunitions, and fighting equipments and then all that. And because of that, वो जो पैसा जो इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल हो सकता था, वो पूरा लड़ाई में ही खर्च हो जाता है। That reduces the production of basic goods and services, and ultimately during the war time, लोग भी जिनके पास पैसे होते हैं वो भी गुड्स, सर्विसेज, क्लोथ्स, फ्यूल्स, फ्रूट ग्रेन्स, इनका स्टोरेज करने लगते हैं। एट द सेम टाइम in the market, the merchant and the traders also, है ना, adopts the policy of black marketing and hoarding, and that increases the price of goods and services very rapidly in the market, and ultimately the poor suffers. Due to the several wars in India, development expenditure is reduced. हमने आज़ादी के बाद लड़ाइयाँ की, उसके बाद भी इंटरनली ही रियॉट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, रिलीजियस इश्यूज इतने रहे हैं कि डेवलपमेंट पे ज़्यादा खर्चा नहीं हो पाया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिमेन्स ऑन लो एंड प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइजेस कीप ऑन टेकिंग प्लेस एंड द पॉवर्टी ऑल्सो इंक्रीजेस। और ऐसे ही लड़ाई या तो दूसरे रियॉट्स या अनडेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के पीछे ज़्यादा पैसा खर्च हो जाने की वजह से पॉवर्टी कॉन्स्टेंटली आज भी सोसाइटी में देखने को मिल रही है। Increase in defense expenditure. Several wars made the issues of security very serious. We have such a neighboring country in, है ना, nearby us. Those keep on giving trouble to
us since the long time. Especially you take the example of Pakistan कि जब से हमने आज़ादी हुई हमारी है ना एंड वी डिवाइडेड इंडिया एंड पाकिस्तान, तब से लेकर आज तक उनके साथ हमारे इश्यूज चल रहे हैं. सेम थिंग इज देयर विद द चाइना ऑल्सो. इन ऑर्डर टू है ना absorb or take our territory into with them, they are always giving us some sorts of trouble on the border areas. And because of that, to make the security system stronger, the government keep on spending good amount of money for modern missiles, fighter planes, tanks, submarines, etc. In the present time also, to fight against the terrorism, that is a universal issues, lots of social facilities और special facilities have increased expenditure of the defense. और दूसरा सबसे बड़ा जो खौफ पूरी दुनिया में फैला हुआ है एंड दैट इज़ अ टेररिज्म. उससे लड़ने के लिए, उसके कंट्री को सेफगार्ड करने के लिए भी डिफेंस वगैरह पे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है. एंड व्हेन यू डू सच काइंड ऑफ डिफेंस एक्सपेंडिचर मोर, एज द एक्सपेंडिचर ऑन सिक्योरिटी और डिफेंस इज़ नॉन डेवलपमेंट, ये जो आर्म्स एनिमेशन, फाइटर प्लेन्स, मिसाइल्स जो हम खरीदते हैं, उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाता है ना, एंड दैट इंक्रीजेज द बर्डन ऑन द गवर्नमेंट. और उसी वजह से जब डिफेंस एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहे हैं तो गवर्नमेंट वो पैसा इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो पैसा होगा वहाँ से यूटिलाइज करती है. एंड फाइनली द इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिमेन्स ऑन अ लोअर साइड एंड दैट कीप्स द पॉवर्टी प्रॉब्लम मोर सीवियर. Defective policies of the government. For rapid economic development in India, second 5-year plan onward, basic and heavy industries were given priority. जैसे हमने अभी भी डिस्कस किया था, स्पेशली फ्रॉम सेकेंड 5-year प्लान अंडर द लीडरशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, second 5-year plan was purely concentrated towards the development of industry. और वो भी कौन सी इंडस्ट्री? हैवी इंडस्ट्री एंड बेसिक इंडस्ट्री. That includes the petroleum, coal industry, iron industries, mineral based industry. उन सभी पे ही ज़्यादा ध्यान दिया गया और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, इनको निग्लेक्ट किया गया. एग्रीकल्चरल स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज which gave the employment and income to the majority of the population developed slowly, and due to that the income of the poor people remained low. एज आई सॉ है ना, और हमने जैसे अभी डिस्कस किया कि स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री इज हैविंग अ हाई पोटेंशियल टू प्रोवाइड अ गुड नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी टू द पीपल. सेकेंड थिंग, इन इंडिया येट टुडे 60% पॉपुलेशन लिविंग इन अ रूरल एरिया इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, बट द एग्रीकल्चर, small scale and cottage industrial sector was neglected, especially after the second 5-year plan. एंड बिकॉज ऑफ दैट ये तीनों सेक्टर का ग्रोथ बहुत स्लो हुआ, एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं हो पाया. एंड बिकॉज ऑफ दैट ये तीनों फील्ड ऐसी थी जिसमें ज़्यादातर लोग इन्वॉल्व है, ज़्यादा पॉपुलेशन काम कर रही है और उसी का डेवलपमेंट नहीं हुआ. इस वजह से आज भी लोगों की इनकम कम है और पॉवर्टी का प्रॉब्लम बढ़ते ही जा रहा है. अपार्ट फ्रॉम दीज, वेरियस स्कीम्स वर इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड to reduce the poverty and unemployment, but due to the frequent changes in the ruling government many times and the lack continuity and coordinations. एक तो ऑलरेडी एग्रीकल्चर, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं दिया गया. एट द सेम टाइम जो भी प्लानिंग और पॉलिसी बनी पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए, उसमें करप्शन ने अपना रोल प्ले किया. गवर्नमेंट हर 5 साल के बाद चेंज हो जाती है, तो जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है वो एक्स गवर्नमेंट के जो भी प्लानिंग्स होती है उसको कैंसल कर देती है, चाहे वो बेनिफिट दे रहा हो या ना दे रहा हो. एंड दैट क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूटी एंड कोऑर्डिनेशन. और जो भी बहुत सारी प्लानिंग और पॉलिसीज बने उनमें इतना डिफेक्टिव था या वो सिस्टम इतने करप्टेड थे कि कभी भी प्लानिंग का जो मेन पर्पस या मेन एम जो होता था एडवांटेज देने का पॉवर्टी रिमूवल के लिए, वो कभी भी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया. और उस वजह से आज भी
इंडिया में पॉवर्टी का इश्यू अभी भी एक बड़ा मेजर इश्यू बनकर ही हमारे सामने खड़ा हुआ है. सो दिस वर द वेरियस कॉजेस ऑफ पॉवर्टी. इन एग्जाम यू विल नॉट आस्क अ फुल क्वेश्चन, आपको पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा, बट जो उसकी कैटेगरीज है ना, हिस्टोरिकल रीजन, कॉजेस ऑफ रूरल पॉवर्टी, इकोनॉमिक फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, इसमें से कोई भी 2 या 3 का कॉम्बो करके आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ओके, so this was all about your particular session. Keep on revising, keep on learning. Goodbye. Take care, students.